So we have started about the alkaloids, and we have seen whole alkaloids, but later on I realized that there was some drugs which are missing. So I have included these drugs in the today's part. So I'm going to continue with it. Pharmacognosy of alkaloids. We have seen about the alkaloids introduction, their biosynthesis, different alkaloids, different alkaloid drugs also. So there was some few drug remaining. So we'll take that drug and then we'll see the tannins. Okay. So first drug from this category is nothing but the drug containing benzyl isoquinoline type of alkaloids. So from that category we have seen ओपीएम alkaloid. ये बेंजील आइसोक्विनोलिन टाइप का अल्कोलॉइड्स जो है उसमें क्या अपन ने देखे है, कौन सा ओपीएम का अल्कोलॉइड देखा है अपने. तो उसमें और एक इम्पोर्टेंट ड्रग बचा था. सो लेटर ऑन आई हैव रियलाइज थोड़ा सा बचा है, वो बाद में पता चला मुझे. सो इपिकेकुना, दिस ड्रग वाज रिमेनिंग इपिकेकुना, नोन एज इपिकेकुना. ओके. सो अगेन from every pharmacognosy drug, what is important? Drug, their synonym, their biological source, chemical constituent, and their resultants, and sometimes cultivation collection and microscopic characters are also important. So ipecacuanha synonym क्या है इसका? What is the synonym of ipecacuanha? So it is known as a ipecac. Okay. Synonym of ipecacuanha is ipecac. Then hippo, it is also known as a hippo. Then radiac ipecacuanha. These are the synonyms. Radiac ipecacuanha, ipecac, hippo, radiac ipecacuanha. Then biological source and geographical source of this drug. बायोलॉजिकल सोर्स इंपॉर्टेंट रहता है. जियोग्राफिकल सोर्स कभी कभी पूछ लेगा, कभी कभी मोस्ट ऑफ टाइम जियोग्राफिकल कोर्स जो है जियोग्राफिकल सोर्स नहीं पूछेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पूछेगा, कभी कभी पूछ लेता है. जीपैट 2021 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ पायरेथ्रम. उसका आंसर था वो केनिया उस टाइम पे. नाउ इपिकेकुना, व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स? इट इज अ ड्राई रूट्स. अगेन इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग. ड्राई रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ सेपेलिस इपिकेकुना. ड्रग का नाम क्या है? सेपेलिस इपिकेकुना. Somebody wants to join, please type message in the group. So it is a dried roots and rhizomes of Sepelis ipecacuanha, Sepelis acuminata. Sepelis ipecacuanha, Sepelis acuminata. फैमिली क्या है इसका? रूबियासी. Sepelis ipecacuanha, Sepelis acuminata. फैमिली रूबियासी. So remember, dried roots and rhizomes of Sepelis ipecacuanha, Sepelis ipecacuanha and Sepelis acuminata, family Rubiaceae. Now again it should not contain not less than 2% of total alkaloids, and most important alkaloids. So out of this 50% should be imetin. The important alkaloid from ipecacuanha is imetin. इमेटिन नाम का जो अल्कोहल है वो इम्पोर्टेंट होता है इसमें इपिकेकुना में. देन ओके, इसके दो वैरायटीज हैं. There are two varieties of this ipecacuanha. First one is known as Sepelis ipecacuanha. Sepelis ipecacuanha. Now, and second one is the Sepelis acuminata. There are two varieties, Sepelis ipecacuanha and Sepelis acuminata. Now, Sepelis ipecacuanha, known as a Rio. It is known as a Rio ipecac. It is known as a Rio ipecac. इसको ही रिवो इपिकैक बोलते हैं. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर नाइपर. नाइपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है 100%. सो कौन सा सेपेलिस इपिकैक, कौन सा रिवो इपिकैक है, कौन सा ब्राजीलियन इपिकैक है, कौन सा पनामा इपिकैक है, मतलब ये कंफ्यूज करने वाला ही क्वेश्चन आता है इसमें. सो रिमेंबर सेपेलिस इपिकैकुना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रिवो इपिकैकुना और ब्राजीलियन इपिकैक. Revo ipecac, Brazilian ipecac, it is nothing but the Sepelis ipecacuanha. So it is obtained from Brazil, India, Myanmar and Malaysia. किसमें होता है ये? ब्राज़ील में पाया जाता है, म्यांमार में पाया जाता है, मलेशिया में. सो सेपेलिस इपिकेकुना इज नोन एज अ रिवो इपिकैक और ब्राज़ीलियन इपिकैक, राइट.
नाउ सेपेलिस एकुमिनाटा जो वैरायटी है, इट इज नोन एज अ पनामा इपिकैक और कार्टेगना इपिकैक। पनामा इपिकैक और कार्टेगना इपिकैक और पनामा इपिकैक ऑब्टेन फ्रॉम कोलंबिया। ये कहाँ पे जाता है? कोलंबिया, पनामा एंड निकारागुआ। ठीक है, तो ये वैरायटीज इंपॉर्टेंट है। सेपेलिस इपिकैकुना इज ऑल्सो नोन एज अ ब्राजीलियन इपिकैक और रियो इपिकैक ऑब्टेन फ्रॉम ब्राजील, इंडिया, म्यांमार, मलेशिया। देन सेपेलिस एकुमिनाटा also known as a Panama ipecac or Cartagena ipecac obtained from Colombia, Panama, Nicaragua, right? Now, cultivation collection of this plant. Cultivation collection for Ipecacuana is not much important. इसके ऊपर कल्टिवेशन के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन बट मालूम होना चाहिए। प्रोपगेशन इज डन बाय सोइंग द सीड्स। इसके सीड्स होते हैं, यू हैव टू सो द सीड्स इन जनवरी और फरवरी। जर्मिनेशन कैन बी इम्प्रूव, जो सीड्स होते हैं उसका जर्मिनेशन जो है, रेट ऑफ जर्मिनेशन दैट कैन बी इम्प्रूव बाय सोकिंग दैट सीड्स इनटू ए लाइम वाटर। जो अल्कलाइन वाटर होता है, लाइम वाटर, उसमें ये आपको सीड्स जो है उसको भिगो के रखना है। सो सोकिंग ऑफ सीड्स इन द लाइम वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड, लाइम वाटर में या हाइड्रोजन परऑक्साइड में ये इसको भिगो के रखना है ताकि उसका जर्मिनेशन रेट बढ़ सके, मतलब सभी सीड्स का स्प्राउटिंग हो सके, सभी सीड्स से आपको सीडलिंग मिल जाए। सो प्रोपगेशन इज डन बाय सोइंग द सीड्स इन जनवरी और फरवरी। जर्मिनेशन कैन बी इम्प्रूव बाय सोकिंग इनटू लाइम वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। नाउ 2 months ओल्ड सीडलिंग, 2 महीने का जो पौधा होता है वो आपको ट्रांसप्लांट करना है। यू हैव टू ट्रांसप्लांट 2 months ओल्ड सीडलिंग इन द फील्ड। टेम्परेचर कितना लगता है? टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 23 to 28 degrees Celsius. Rainfall is required is 300 centimeter. Harvesting of root is done after 3 years. 3 years of age का प्लांट अगर हो गया, उसके बाद में उसका रूट्स एंड राइजोम यू हैव टू कलेक्ट, यू हैव टू हार्वेस्ट बाय यूजिंग डगिंग मेथड। खोद के निकालना पड़ता है उसका रूट्स एंड राइजोम को। सो बाय डगिंग यू हैव टू ऑब्टेन रूट्स एंड राइजोम ऑफ दिस प्लांट। नाउ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम। सो जो रूट्स होंगे, स्टेम्स होंगे, है ना, रूट स्टेम्स बार्क वगैरह जो होंगे, उसका एक कॉमन फीचर रहता है माइक्रोस्कोपी में। सो रूट्स में क्या होता है, इसको प्रेजेंस ऑफ कॉर्क सेल, कॉर्क लेयर मतलब कॉर्क सेल लेयर विद द ब्राउन कंटेंट, एसिकुलर और रैफाइड टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट। क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं 2 दिन बाद, कौन से टाइप की कैल्शियम ऑक्सीलेट। सो इन द सेपेलिस इपिकैकुना और सिंपली इपिकैकुना, एसिकुलर टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट। एसिकुलर मतलब प्रिज्मेटिक टाइप, एसिकुलर और रैफाइड टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स। स्टार्च इज देयर, स्टार्च ग्रेन्स का साइज होता है अराउंड 15 माइक्रोन, ओके, एंड देयर इज अ मेडुलरी रेज। नाउ राइजोम्स का अगर टीएस देखिए, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ राइजोम्स। So पेरिसाइकल इज विद थिक वॉल स्क्लेराइड एंड स्टार्च ग्रेन का साइज इसमें बड़ा रहेगा, 22 माइक्रोन का स्टार्च ग्रेन है। माइक्रोस्कोपी में सिर्फ एसिकुलर और रैफाइड टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल रहते हैं, इतना ही आता को। केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट इन दिस प्लांट, केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट इन द इपिकैकुना। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ अल्कोलाइड्स विच आर प्रेजेंट इन द इपिकैकुना। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अल्कोलाइड्स इज नथिंग बट द फिनोलिक ग्रुप। So phenolic group alkaloids, in that you are going to have cephalin and psychotrine. तो 2 टाइप का है ना, there are 3 types of classes of alkaloids. There are 3 classes of alkaloids present in the इपिकैकुना. First class is the phenolic group. So in the phenolic group यहाँ पे cephalin होगा and psychotrine होगा. And non phenolic group में क्या रहेगा? In the non phenolic group imetin, which is the important alkaloid, then orthomethyl psychotrine another. Then थर्ड, सेपेलिन इज कन्वर्टेड इनटू इमेटिन बाय मिथाइलेशन। जो सेपेलिन होता है, सेपेलिन इट इज वन ऑफ द अल्कोलाइड प्रेजेंट इन द इपिकैकुना, दैट इज अ फेनोलिक अल्कोलाइड सेपेलिन। सेपेलिन इज लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू इमेटिन बाय द मिथाइलेशन ऑफ OH at 6 C6। जो कार्बन नंबर 6 होता है इसके स्ट्रक्चर में सेपेलिन के, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वहाँ पे मिथाइलेशन होगा और ओके। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है, देखो
हर एक चीज़ जो होता ना वो आपको बाय हार्ट देखना है, समझना है। क्या लिखा है यहाँ पे, सेपेलिन इज कन्वर्टेड इनटू इमेटिन बाय मिथाइलेशन ऑफ OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप एट 6,6। तो है ना, तो सिंपल है, इमेटिन आफ्टर डीमिथाइलेशन, इमेटिन आफ्टर डीमिथाइलेशन विल गिव यू सेपेलिन। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, सेपेलिन और इमेटिन में डिफरेंस क्या है। सो ओनली मिथाइलेशन एट C6। सेपेलिन हैज अ OH group at C6 and imetin has a OCH3 group at C6. That is the difference. Now uses Sapellis ipecacuanha is expectorant used as a emetic. It is an anti-protozoal and sapelin is a more emetic. It is a more emetic, less expectorant than emetin. Emetin जो alkaloid है, that is the most important alkaloid, and its use of Sapellis ipecacuanha is because of this emetin. Emetin की वजह से यूज है। Okay? So it is used as expectorant. Expectorant मतलब क्या है, to remove the mucus from your bronchi, to remove the mucus from respiratory tract. Expect मतलब क्या, to expect मतलब to remove, to expect means to remove or to expel. Expel means to expel out of the, to remove. So expectorant means used in the treatment of cough to expel the mucus. Okay, then emetic means to induce the vomiting, to induce the vomiting. Anti-protozoal भी होता है. Okay, सेपेलिन जो है, it is a more emetic and less expectorant as compared to emetin. Now chemical test is chemical test not much important. So you have to take 2.5 gram of powder and add HCl 20 ml plus 5 ml water. Shake and filter. 0.5 gram of potassium chloride you have to add, and after that you have to filter that. So after filtration, presence of yellow color is there because which is changing to red due to emetin. Okay? So important test है. Then second होता है Frohedes reagent. Frohedes reagent. Sodium molybdate. Sodium molybdate plus eustaspor. ये reagent याद रखो. Frohedes reagent. Frohedes reagent, sodium molybdate plus sulfuric acid. So with this, emetin gives bright green color. ये test important. There are two tests. First test is the nothing but the drug plus HCl plus water, and you have to add potassium chloride and okay, to a filtrate. मतलब क्या करना है, पहले ड्रग लेना है, एसिड में हाइड्रोलाइसिस करना है उसका, वाटर ऐड करना है, फिल्टर करना है, फिल्टर के बाद में जो फिल्ट्रेट बचा है उसमें ये पोटेशियम क्लोराइड ऐड करना है. सो यू विल गेट अ येलो कलर विच विल चेंज ग्रेजुअली टू रेड कलर. दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इमेटिन. आपको ऐसा ही सेंटेंस देंगे, है ना, आपको ऐसा ही सेंटेंस देंगे और पूछेंगे पोटेशियम क्लोराइड ड्यू टू इमेटिन. आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, टेस्ट पूरा जैसे को वैसे देंगे, एंड ड्यू प्रेजेंस ऑफ येलो कलर चेंजिंग टू रेड, इट इज़ ड्यू टू बोलेंगे, उसके नीचे देंगे कोई चीज़, ये सेपेलिन देंगे, साइकोट्रिन देंगे और इमेटिन देंगे, ऐसा ऑप्शन देंगे. सो इमेटिन इज द, दैट इज द कलर इज यूज टू डिटेक्ट द इमेटिन. अगेन सेकंड रीजन, फ्रोहेडेस रीजन, सोडियम मॉलिब्डेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इमेटिन विल गिव यू ब्राइट ग्रीन कलर. ठीक है, ये होता है इसका. सो सेपेलिस इपिकेकुना विल लुक लाइक दिस. सेपेलिस इपिकेकुना कैसा है, कुछ इस तरीके का उसका प्लांट होता है एंड रूट्स ऑफ सेपेलिस इपिकेकुना. देयर इज नो नीड टू स्टडी द टीएस, बस इतना याद रखो कि देयर इज एसिकुलर टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड और रैफाइडल टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इज देयर एंड cortex and pallidum. बस इतने. नेक्स्ट ड्रग इज नथिंग बट द next drug. There was a two three drugs remaining from Solanaceae family, particularly belladonna, hyoscyamus niger and hyoscyamus niger and strontium. So 3 drugs were remaining: hyoscyamus niger, belladonna and strontium. So what are the important features of Solanaceae family? Solanaceae में क्या क्या important feature है? Solanaceae family जो genera है, the genera Solanaceae family will consist of which alkaloids? ट्रोपेन अल्कोलाइड्स. रिमेंबर, इसमें क्या रहेगा, इस कैटेगरी में ट्रोपेन अल्कोलाइड. सो
ट्रोपेन अल्कोलाइड्स आर फाउंड इन द सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली याद रखना आपको, क्वेश्चन एक बार आ चुका है वैसे। सोलेनेसी फैमिली जनरा they can be classified according to the type of alkaloids present. Okay, so first category, so हाइड्रोसायामीन इज द मेन अल्कोलाइड। तो ऐसे ड्रग जिसमें हाइड्रोसायामीन मेन अल्कोलाइड होगा, किसमें होगा? सो हाइड्रोसायामीन इज मेन अल्कोलाइड प्रेजेंट इन द दतुरा, स्टोमोनियम, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा एकुमिनेटा, ड्यूबोसिया, मायरोपायराइड्स, साउथ ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेन। ड्यूबोसिया का ड्रग यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है मैंने, ड्यूबोसिया। देन हायोसिन एज अ मेन अल्कोलाइड, कि सोलेनेसी में एक कुछ ड्रग होंगे जिसमें हाइड्रोसायामीन ये मेन अल्कोलाइड होगा, बाद में इन एडिशन टू दैट बाकी भी होंगे, जैसे साया, ये हायोसायामीन, एट्रोपिन, माइनर क्वांटिटी में, बट हाइड्रोसायामीन इज द मेन कंपोनेंट। देन हायोसाइन एज अ मेन कंपोनेंट और अल्कोलाइड। सो ड्रग्स कंटेनिंग हायोसिन एज अ मेन कंपोनेंट, so detrimental, then dibosa, then hydrocyamine plus hyoscine, both in a low quantity, so that is when the hyoscyamus niger, then mandragora officinarum। ट्रोपेन अल्कोलाइड क्या होता है? इन द ट्रोपेन अल्कोलाइड, ट्रोपेन मॉलिक्यूल इज फ्यूजन विद द, इट इज अ फ्यूजन ऑफ, ट्रोपेन मतलब क्या? इट इज फ्यूजन ऑफ पायरोलिडिन रिंग प्लस पिपरिडिन रिंग विद द कॉमन मिथाइलेटेड नाइट्रोजन। ये याद रखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ट्रोपेन अल्कोलाइड्स आर नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ व्हाट? पायरोलिडिन रिंग, पिपरिडिन रिंग विद द कॉमन मिथाइलेटेड नाइट्रोजन। आर यू गेटिंग? एम आई ऑडिबल? नेक्स्ट ड्रग इज नथिंग बट द बेलाडोना। ये जो बेलाडोना है ये बहुत ही फेमस ड्रग। ओके, सो दिस बेलाडोना इज वेरी मच फेमस ड्रग। ओके, so belladonna is very much famous drug, and let's see the synonym of this belladonna। क्या है synonym इसका? so it is known as a belladonna leaf। क्या बोलते हैं इसको? belladonna leaf, belladonna, belladonifolium, and most important deadly nightshade leaf, deadly nightshade leaf। deadly nightshade leaf क्यों बोलते हैं इसको? why belladonna is known as a deadly nightshade leaf? there is a reason। so the ladies of your western, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके जो लेडीज़ थे, तो वो सुंदर दिखने के लिए, सो वो सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं? ये बेलाडोना जो है उसका लीव्स का एक्सट्रैक्ट जो है ना वो अपने आइज़ में डालते। दे यूज टू इंस्टिल द एक्सट्रैक्ट ऑफ बेलाडोना लीव इन देयर आइज़। क्यों आइज़ में क्यों डालते थे यहाँ पे? बिकॉज दिस बेलाडोना हैज़ अ एट्रोपिन। बेलाडोना में क्या होता है? एट्रोपिन, हायोसामिन एल्कोलाइड्स होते हैं। So what are they? They are nothing but the mydriatic। ये क्या होते हैं? mydriatic। They will dilate your pupil। mydriatic होते ये pupil का डायलेशन करेंगे। mydriatic होते pupil का डायलेशन करेंगे। pupil का डायलेशन हो गया मतलब क्या है? So it will there is increase in the size of pupil। तो देखो जो लड़की है, जो लेडीज़ है जिनकी आँखें बड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, ईजिली वो पूरा अट्रैक्शन खींच लेती है। So that's why the European and Western countries, ladies of these countries, they used to instill the extract of this belladonna in their eyes to enhance the beautiness, to increase the pupil size। Okay, that's why it is known as a deadly nightshade leaf। ठीक है, क्योंकि अगर उनकी आंखें बड़े हो गए तो वो बहुत सुंदर लगती थी, और बाकी जो मर्द है कमीने जिनको देखने वाले, तो उनका फिर वो डेड हो जाते थे, तो मतलब उनका काम खराब है ना, उनका तो कार्यक्रम हो गया फिर। तो डेडली नाइटशेड लीफ, यूरोप, also known as the European belladonna, also known as the European belladonna। What is the biological source and geographical source of this drug? Dried leaves and other aerial part of Atropa belladonna। Okay, dried leaves and other aerial part of Atropa belladonna lean। Okay, it is known as a European belladonna। Atropa belladonna is known as a European belladonna। नाम याद रखना है आपको, इसके ऊपर भी नाइपर में क्वेश्चन आता है। Which is a European belladonna, which is known as the Indian belladonna। तो Atropa belladonna lean, Atropa belladonna is a European belladonna। Atropa belladonna is a European belladonna। Then Atropa acuminata, Atropa acuminata is an Indian belladonna। Atropa belladonna European
जैसे मैंने बोला कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लेडीज़ थी वो इससे ऐसे को रिलेटेड हो। एट्रोपा बेलेडोना यूरोपियन, पहले एट्रोपा बेलेडोना आता है, बाद में एट्रोपा एकोमिनाटा आता है, ऐसा याद रखो। एकोमिनाटा इंडियन, बेलेडोना, एट्रोपा बेलेडोना यूरोपियन, एट्रोपा एकोमिनाटा इंडियन। So Atropa acuminata is Indian, Belladonna, both belongs to family Solanaceae. It should contain not less than 0.3% of the total alkaloids, calculated as L-hyoscyamin. Atropine क्या है? Atropine is a racemic mixture of L-hyoscyamin. जो L-hyoscyamin होता है, L-hyoscyamin, T-rotary hyoscyamin, उसका ही racemic mixture होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन इज द racemic mixture of L-hyoscyamin. You have to remember. Now it is indigenous to England and other European countries. Also cultivated in India in the western Himalayas from Shimla to Kashmir and adjoining area of Himachal Pradesh. Chief habitat is nothing but the Jammu Kashmir forest. जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। सिंध एंड चिनाब वैली, जो कश्मीर का सिंध वैली है, चिनाब वैली है, उसमें भी ये पाया जाता है। It is nothing but the geographical source. Now we'll see the chemical constituent. Now cultivation and collection parameter for belladonna. Cultivation collection not much important for this, but it will grow at altitude of 1400 meter. 1400 मीटर का altitude लगता है इस प्लांट को। Healthy seeds are broken from the berries. बेलेडोना का एक बेरीज रहता है, बेरी मतलब जैसे होता है, देखा काम है, बेरीज मतलब मराठी मतलब बोरो मतलब। सो हेल्दी सीड्स फ्रॉम द ब्रोकन बेरीज बेलेडोना के सीड्स जो होते हैं उसको बेरीज बोलेंगे। तो फ्रूट जो होते हैं उसको बेरीज बोलते हैं। सो फ्रूट्स में सीड रहेगा। सो फ्रूट्स ऑफ बेलेडोना दे आर नॉन द बेरीज एंड ब्रोकन हेल्दी सीड्स फ्रॉम ब्रोकन बेरीज बेलेडोना दे आर यूज्ड। सीड्स आर सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ठीक टू द फंगिसाइड डायथॉन। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड मीन्स आपको हाथ में लेना है सीड्स और जहाँ पे फील्ड में उसको उगाना है वहाँ पे फेंक देना है, इसे है ना, फैल के फेंक देना है उसको बोलेंगे ब्रॉडकास्टिंग मेथड। सो ब्रॉडकास्टिंग मेथड इट इज सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड एंड ट्रीटेड विद द फंगिसाइड डायथॉन। सोइंग इज डन इन द May and July. Seedlings are ready at the end of September. Seedlings are ready to transplant into field at the end of September. सितंबर में वो रेडी हो जाएगा ट्रांसप्लांट करने। Now they are transplanted by keeping the distance and they are irrigated carefully. Irrigated मतलब पानी देना उनको properly with the proper fertilizer till the maturity. The leaves as well as flowering tops are sun dried and care should be taken to retain the green color. मतलब क्या, links at the end of September, May, June and July में क्या करना है, उसको सीड्स को ये करना है, उगाना है। और सीडलिंग्स ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सीडलिंग्स बाद में ट्रांसप्लांट करना है। सीडलिंग्स एट द एंड ऑफ सितंबर यू हैव टू ट्रांसप्लांट बाय कीपिंग a specific distance like 2x2, 4x2 like that. And they are irrigated carefully and put the proper fertilizer till the maturity. The leaves as well as flowering tops are sun dried and care should be taken to retain a green color. ग्रीन कलर जो है उसका फ्लावरिंग टॉप्स का वो रिटेन होना चाहिए, रहना चाहिए, तभी जाके ड्रग रहेगा उसमें। Microscopic characters of this plant. Remember, I have told you all Solanaceae family drug belonging to Solanaceae family they will have anisocytic stomata. जितने भी Solanaceae family के ड्रग्स है उसमें क्या रहेगा, अनिसोसाइटिक स्टोमेटा रहेगा। यूनिसीरिएट मल्टीसेलुलर कवरिंग ट्रैकम in the epidermis, and uniseriate glandular trichomes with the unicellular hair. Remember most important characteristic, sandy or microspinoidal calcium auxiliary crystal. Anisocytic stomata, sandy or microspinoidal crystal आता है इसके ऊपर क्वेश्चन बेलेडोना का माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स के ऊपर। सो anisocytic stomata and sandy or microspinoidal calcium auxiliary crystal. Then uriseriate multicellular covering trichome. Both type of trichomes are present. इतना ही याद रखना है कि covering trichomes भी है and glandular trichomes. Covering trichome का काम क्या होता है, for the production. Covering trichomes they are having mostly production function. And glandular trichome का काम क्या होता है, to secrete something. Glandular trichomes they will secrete some, okay, some like they will secrete some
the volatile oil, or they will secrete some compound which is having smell, etc. Then chemical constants, इसमें क्या रहेगा, अल्कोलाइड्स रहेंगे, है ना. Chemical constant is nothing but the alkaloids. So total alkaloidal content is nothing but the 0.4 to 1%. Now main alkaloids are nothing but the L-isoamine. Main कौन सा alkaloid? L-isoamine. And then its racemic mixture, that is atropine. Atropine is a racemic mixture of L-isoamine. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. एट्रोपिन इज अ रैसमिक मिक्सचर ऑफ L-isoamine. क्वेश्चन आता है उसके ऊपर. अदर अल्कोलाइड्स प्रेजेंट इन दिस प्लांट इज नथिंग बट द बेलाडोनिन, स्कोपोलेटिन. स्कोपोलेटिन इज आल्सो नोन एज 1-methyl एक्युलेटिन. देन उसके बाद में हायोसिन आएगा, पायरोलिन आएगा, N-methyl पायरोलिन आएगा. ओके, बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर. देखो क्वेश्चन आपको आता है विच अल्कोलाइड इज अ वोलेटाइल इन नेचर. पायरोलिन एंड N-methyl पायरोलिन. प्लस आपको जो निकोटीन है, निकोटीन इज अ लिक्विड बट इट इज नॉट वोलेटाइल इन नेचर. लिक्विड अल्कोलाइड इज नथिंग बट द निकोटीन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड अल्कोलाइड बट इट इज नॉट अ वोलेटाइल इन नेचर. वोलेटाइल नहीं है. ये क्या है? पायरोलिन एंड N-methyl पायरोलिन, दे आर लिक्विड प्लस वोलेटाइल. सो दैट्स व्हाई स्मेल इज देयर. स्मेल इज ट्रेसर. नाउ यूजेस ऑफ दिस बेलाडोना, यूजेस क्या रहेंगे? सो इट इज अ anticholine receptor. It will block the acetylcholine. So parasympatholitic is there, anticholinergic. So it is used as antispasmodic. आपके स्मूथ मसल का स्पाज्म है तो उसमें यूज करेंगे. अगेन दिस बेलाडोना इज an antidote. Belladonna is an antidote for opium and chloral hydrate poisoning. Chloral hydrate क्या होता है? Chloral hydrate is a drug which is known as a sedative hypnotic. So chloral hydrate नाम का ड्रग जो होता है, that is a sedative and hypnotic. Tell me the active metabolite of this chloral hydrate. Anybody? What is the active metabolite of chloral hydrate? Anybody? We have already seen in the pharmacology. If you don't, माहिती आहे कोणला नसेल तर मग मी सांगतो. ट्रायक्लोरोइथेनॉल. So active metabolite of this, am I audible? Okay. So active metabolite of this chloral hydrate is nothing but trichloroethanol. So this belladonna is used as antidote for opium and chloral hydrate poisoning. उसके substitute and adult drug कौन से? Just remember, first one is a Phytolacca americana. Phytolacca americana, it can be distinguished by microscopically having presence of idioblast calcium oxalate. आपके ओरिजिनल ड्रग में क्या है? कौन सी ऑक्सैलिटी है ना? आपके ओरिजिनल ड्रग में कौन सी है? कैल्शियम ऑक्सैलेट, सैंडी और माइक्रोस्पिनाडोल. ठीक है. लेकिन फाइटोलैक्का अमेरिकाना में क्या है? इडियोब्लास्ट टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट. तो एनेस्थेटिक टोमेटो कॉमन होगा बिकॉज बोथ बिलोंग्स टू सेम फैमिली. द नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट. सोलेनम निग्रम इज अनदर drug which is used to substitute the belladonna. It can be distinguished by palisadation. That's why they are known as quantitative parameters. Stomatal index, palisade ratio, ventilate number, stomatal number. तो हर एक प्लांट का अलग अलग होता है वो, है ना. इवन स्पेसिस का अलग होता है. देन एलिंथस ग्लैंडू, एलिंथस ग्लैंडुलोइडिया, एलिंथस glanduloia, Erythus glanduloia, that is another drug. It can be distinguished by cluster of calcium oxalates. Okay, इसमें cluster calcium oxalates चलेंगे, है ना. फाइटोलैक्का अमेरिकाना में इडियोब्लास्ट और निडल शेपर क्रिस्टल रहेंगे और इसमें क्या रहेगा? मेन ड्रग में सैंडी और माइक्रोस्पिनाडोल कैल्शियम ऑक्सलेट. केमिकल टेस्ट का इट विल गिव पॉजिटिव विथैलिमोरिन रिएक्शन. आपने देखा है विथैलिमोरिन रिएक्शन. नेक्स्ट ड्रग देखेंगे. कैन सी दिस इज नोन एज एट्रोपा बेलाडोना. ये एट्रोपा का प्लांट है. इसमें एट्रोपा बेरीज, उसमें फ्रूट रहेगा, उसमें सीड रहेगा. दिस प्लांट इज नोन एज हायोसाइमस निगर. दिस प्लांट इज नोन एज हायोसाइमस निगर. ये आपका धतूरा का प्लांट जैसे, बट इट इज नॉट धतूरा प्लांट नहीं है. This is known as a Hyoscyamus niger. This plant is known as a Stromonia. लास्ट वाला जो है
स्टोमोनियम, बिकॉज ये IP लिस्ट किया है, उसके बाद में उसका इंफॉर्मेशन देगा. बट स्टोमोनियम, द सिनोनिम इज नथिंग बट द स्टोमोनियम लीफ. इट इज नोन एज अ थॉर्न एप्पल लीफ. क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, आ चुका है प्रीवियस. थॉर्न एप्पल लीफ. Stramonium is known as a thorn apple leaf. Dried leaves and flowering tops of Datura Stramonium family Solanaceae. Datura Stramonium family Solanaceae. It should contain not less than 0.25% total alkaloids known as a hyoscyamine. So ये कहाँ पे पाया जाता है? What is geographical source? Indigenous to Spain. Cultivated in US, South America, France, Germany and Hungary. It is an annual herb. It is annually propagated by seeds. With the distance of 1 meter, needs a calcareous soil. इसको calcareous soil लगता है. Flowers in September. Flower आते हैं इसको. Flowering stage आता है सितंबर में. Now it is collected before the flowering and during the flowering stage. ये कलेक्शन कब होता है? Collected before the flowering and ड्यूरिंग फ्लावरिंग. उसको फूल आने से पहले ही कलेक्ट करना है और फूल आ रहे हैं उस टाइम पे कलेक्ट करना है. सो दैट इज अ कलेक्शन. नाउ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर इसमें रहेगा क्लस्टर और प्रिज्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट. मल्टीसेलुलर कोनिकल. देखो सोलनेसी में मोस्टली कवरिंग ट्राइकोम भी होते हैं और ग्लैंडुलर ट्राइकोम भी होते हैं. सो मल्टीसेलुलर कोनिकल यूनिसेडेड ट्राइकोम्स एंड शॉर्ट ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स. देखो सोलनेसी फैमिली में जो प्लांट्स है उसके कवरिंग ट्राइकोम्स भी रहेंगे, दोनों रहेंगे, कवरिंग प्लस ग्लैंडुलर, है ना. और कैल्शियम ऑक्सलेट तो रहेगा. उस टाइप कैसे माइक्रोस्पिनाइडल, सैंडी और एसिकुलर और प्रिज्मेटिक और इडियोब्लास्ट ऐसे टाइप के कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल रहते हैं. एनिसोसाइटिक स्टोमेटाइजर, यू नो दैट इट इज अ फीचर ऑफ सोलेनेसी फैमिली. केमिकल कॉन्स्टेंट रहेगा इसमें हायोसाइमिन एंड हायोसिन विद द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एट्रोपिन. एट्रोपा बेल्ट्रोना में एट्रोपिन ज़्यादा है, ये हायोसाइमस निगर में कम है, स्टोमोनियम में कम है. से यूजेस का ऐसे लाइक दतुरा मतलब एंटीकोलिजिक, एंटीस्पाज्मोडिक वगैरह. सब्स्टिट्यूट, इट इज सब्स्टिट्यूट विद ज़ैंथियम स्टोमारियम फैमिली कंपोजिटी. लीव्स आर, उसका लीव्स का कलर जो है ना पेल ग्रीन होता है एंड रोम्बाइड ओवाइट इन शेप विद द सीलिएटेड मार्जिन. ये यू कैन मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन ज़ैंथम स्टोमारियम एंड योर स्टोमोनियम. दोनों में माइक्रोस्कोपी के लिए जाना नहीं है, ठीक है. बाय विजुअल ऑब्जर्वेशन यू कैन डिफरेंशिएट. देन नेक्स्ट प्लांट होता है एज आर्लिडन सोलेनम निग्रम फैमिली सोलेनेसी. तो लीव्स इसके ओवेड होते हैं, पेटियोलेट होते हैं, पेटियल होते हैं. कोस्टली टूथ मतलब मार्जिन जो होता है उसमें टूथ जैसा मार्जिन होता है, कातरी जो कर्व रहता है उसका. कंटेनिंग कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, नॉट इम्पोर्टेंट. देन नेक्स्ट होता है हायोसाइमस, लास्ट ड्रग हायोसाइमस निगर. हायोसाइमस निगर इज आल्सो नोन एज अ हेनबेन. तो ये इंपॉर्टेंट है, हेनबेन इज नोन एज हायोसाइमस निगर. क्वेश्चन आता है इसका. हायोसाइमस हर्ब, हायोसाइमस. Biogenesis dried leaves of and flowering tops of Hyoscyamus niger. फैमिली का रहेगा सोलेनेसी. शुड नॉट कंटेन लेस देन 0.05% ऑफ अल्कोहल. कौन सा रहेगा? यल हायोसाइमिन. देखो एट्रोपिन जितने भी ड्रग्स है ना, बेलाडोना, दतुरा, स्टोमोनियम, है ना, हायोसाइमस, इसमें अल्कोलॉइड्स तो नियर अबाउट सेम ही है. बस बायोलॉजिकल सोर्स सिनोनिम याद रखना है. क्वेश्चन उसके ऊपर आ रहा है. माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स भी मोस्ट ऑफ दिस ड्रग्स के सेम ही है इसके. सो फाउंड इन द वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, कल्टिवेटेड इन द रशिया, बेल्जियम, हंगरी एंड इंडिया. माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स डॉर्सिवेंट्रल लिप रहेगा, है ना, डॉर्सिवेंट्रल लिप. ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स रहेंगे, एनिसोसाइटिक स्टोमेटा, प्रिज्मेटिक और क्लस्टर ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट रहेंगे. केमिकल कॉन्स्टेंट में वही है, हायोसाइमिन 75%, एट्रोपिन है थोड़ा क्वांटिटी में, हायोसिन रहेगा. ओके, इन द लेजामर यूजेस सेम एंटीकोलिजिक, एंटीस्पाज्मोडिक वगैरह. उसका अलाइड ड्रग दूसरा ड्रग कौन सा ड्रग है? ये हायोसाइमस म्यूटिकस. अलाइड ड्रग मतलब उसकी सिमिलर ड्रग रहता
And Hyoscyamus medicus, it is known as Egyptian henbane. Egyptian henbane used as a commercial source for production of atropine. So ये एक पार्ट है होता, ये हो गया आपका एक पार्ट जो रिमेनिंग अल्कोलाइड्स थे उसका. Now we'll see the next part known as a tannins. देखेंगे next. Are you getting or not? Again, they are known as they are the compound which can precipitate your proteins. So tannins are the compounds. They are the secondary metabolites of the plant. Again, they are having property that they are colored. They are having antioxidant properties, and they will precipitate your protein. So they are astringent also. Astringency भी आता है इसमें tannins में. याद रखना. We'll see there are different types of. उसमें से phenolic compound होते हैं. So tannins. Classification important एक question आता है इसके ऊपर. So they are the most widely occurring in the higher plants. These secondary metabolites occur in the form of cell sap and distinct vacuoles. प्लांट में ये कहाँ पर रहेंगे? सेल सैप में. तो सेल के बीच में जो गैप रहता है वो सेल सैप एंड डिस्टिंक्ट वोकल्स. दे आर एस्ट्रिंजेंट होते हैं. एस्ट्रिंजेंट मीन्स दे विल प्रेसिपिटेट योर सरफेस प्रोटीन. देखो आपने अगर दाढ़ी बनाने के बाद में क्या होता है कि वो जो ब्लेड होता है दैट रेजर वो आपको लग जाता है कहीं ना कहीं. सो जो बार्बर होता है क्या करता है फिर आपके चेहरे के ऊपर ये जो आलम होता है, आलम पुराने ज़माने के बार्बर आलम यूज़ करते थे. आज के ज़माने के बार्बर फिर आफ्टर शेव लोशन यूज करते हैं, है ना. कंसेप्ट वही भंडाना है. कंसेप्ट क्या है कि यार सरफेस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो. सो these tannins they are astringent in nature. Astringent means these can precipitate your proteins. Astringent. No. So they are the astringent substances that are having capacity to combine with the protein and precipitate the protein. Okay. So they are the organic compounds non-nitrogenous. नाइट्रोजन रहता. देखो एक बार क्वेश्चन आ चुका है. So following type of secondary metabolite will have nitrogen in their structure. So किस में नाइट्रोजन रहता है और किस में नहीं रहता है आपको मालूम है. सो इन द अल्कोलॉइड्स नाइट्रोजन इज डेफिनेटली देयर. इट मे बी आइदर इन अ रिंग और इट मे बी आइदर इन आउटसाइड द रिंग. सो इन द अल्कोलॉइड्स आइट्रोपिन इज देयर. सो इन द अल्कोलॉइड नाइट्रोजन इज 100% देयर. इन द ग्लाइकोसाइड्स समटाइम्स नाइट्रोजन मे बी प्रेजेंट. जैसे एन ग्लाइकोसाइड होता है आपका, उसमें नाइट्रोजन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. बट टैनिन्स में देयर इज नो नाइट्रोजन इन द टैनिन्स. Okay. There is no nitrogen in the tannins. You got to remember. Volatile oils में भी नहीं रहते. Tannins they are the organic compounds, secondary metabolite, non-nitrogenous. They are the derivative of polyhydroxybenzoic acid. किसका derivative है? Polyhydroxybenzoic acid. As it is याद रखो polyhydroxybenzoic acid. Organic non-nitrogenous compounds they are the derivative of polyhydroxybenzoic acid. They are used in the medicine for allied purpose, like they are used as a mild antiseptic. उनका एंटीसेप्टिक बोल के भी यूज़ होता है. They are used in the treatment of diarrhea. डायरिया में यूज़ करते हैं. To check the small hemorrhage. मतलब क्या? To stop the microvessel bleeding. They are the astringent. They will precipitate the protein. They will clog that microvessel. अगर कोई bleeding हो रहा है microvessel से तो उसके लिए भी to check the hemorrhage. Okay, check मतलब stop. Then extensively used in the leather industry. So tannins are used for the tanning the leather. Tanning मतलब क्या? देखो आपने अगर स्किन निकला, जैसे डुक्कर का स्किन निकला, आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हो? निकलते आप जो जूते पहनते हो कहाँ से आते? एनिमल्स के स्किन्स का ही बनता है. आजकल तो नहीं बनता ज़्यादा. पहले जो बनते थे एनिमल स्किन के बनते हैं. सो लेदर के जूते ना, रेड चीप, ये वो ऐसा गुच्ची है ना, बहुत सारे ब्रांड मालूम होंगे. सो लेदर इंडस्ट्री. लेदर कहाँ से आता है? एनिमल स्किन. एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द एनिमल स्किन, दैट्स एनिमल स्किन इज उसको टैनिंग प्रोसेस करते हैं. सो टैनिंग मीन्स रिमूव द हेयर्स एंड ऑल दैट एंड सरफेस म्यूकोसा ऑल दैट. सो दैट फॉर द टैनिंग पर्पज tannins are used. So extensively used in the leather industry. Chemically they are the mixture of polyphenols. क्या है chemically? Polyphenols. Generally ortho-hydroxy or ortho-tetrahydroxy.
ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी और ऑर्थो टेट्राहाइड्रोक्सी ऑन द फिनाइलिन। मतलब क्या, एक फिनाइलिन रहेगा उसमें 2-3 OH ग्रुप रहेंगे। सो इट्स अ पॉलीफिनॉल, जनरली ऑर्थो और ऑर्थो डाइहाइड्रो और ऑर्थो टेट्राहाइड्रो, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी और ऑर्थो ट्राइहाइड्रोक्सी ग्रुप्स ऑन द फिनाइलिन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टैनिन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसके? एम आई ऑडिबल? समझ आएगा? सो केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट दे विल फॉर्म ए कोलाइडल सॉल्यूशन विद वाटर। इफ यू प्रिपेयर अ टैनिन पाउडर प्लस वाटर ने किया तो उसमें क्या बनेगा? कोलाइडल सॉल्यूशन। दे विल फॉर्म ए कोलाइडल सॉल्यूशन विद वाटर। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। दे विल शो एसिडिक रिएक्शन। एसिडिक रिएक्शन लिटमस में अगर चेक करेंगे तो एसिड दिखेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल्स। दे आर द एसिडिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। Soluble in the alcohol, they are soluble in the alcohol, glycerin, dilute alkalis. Practically insoluble in the organic solvents except acetone. ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इंसोल्यूबल होते हैं बट एसीटोन में होते हैं। बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, दे आर नॉन एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये नहीं एक्सेल, उसमें इंसोल्यूबल है बट एसीटोन में सोल्यूबल है। Soluble in the alcohol, glycerin and dilute alkalis. Insoluble in the organic solvents except acetone. और स्पेसिफिक टेस्ट फॉर टैनिन, पहले टेस्ट देख लेते हैं इसका। पहले टेस्ट देख लें और पहले टेस्ट देख लेंगे क्योंकि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्ट अच्छा नहीं तो आप खाना नहीं खाते हो। टेस्ट इंपॉर्टेंट है ना। नॉन वेज खाने गए, पहले पूछते हो क्या टेस्ट कैसा है। टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी जीपेट के लिए भी। स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट, टैनिन्स का स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट। पहला है जिलेटिन टेस्ट। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। जिलेटिन क्या है? जिलेटिन इज नथिंग बट द प्रोटीन। सो दे विल प्रेसिपिटेट द जिलेटिन एंड अल्कलॉइड्स। जिलेटिन को भी प्रेसिपिटेट करते हैं, अल्कलॉइड्स को भी प्रेसिपिटेट करते हैं। ओके, सो टैनिन्स दे आर द डेरिवेटिव ऑफ टैनिक एसिड। इसमें क्या रहेगा? टैनिक एसिड रहेगा। टैनिक एसिड, यू नो दैट वेरी फर्स्ट ड्यूरिंग द अल्कलॉइड्स, टेस्ट ऑफ अल्कलॉइड्स, आई हैव टोल्ड यू tannins they are precipitating the alkaloids, है ना। tannic acid is it is a component of universal antidote. tannic acid universal antidote में आता है। क्यों आता है? because tannic acid precipitate the alkaloid. Okay, so gelatin is precipitated by tannins as well as alkaloids are precipitated by tannins. second test होता है precipitation test. tannins are precipitated by salt of copper, tin and lead. अभी इसमें इस कंडीशन में क्या है? जिलेटिन को प्रेसिपिटेट कर रहा था, अल्कोलाइड को प्रेसिपिटेट कर रहा था। यहाँ पे क्या है? ये खुद प्रेसिपिटेट हो रहा है। टैनिन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय सॉल्ट ऑफ कॉपर, टिन एंड लीड प्रेसिपिटेटेड बाय स्ट्रॉन्ग पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एंड क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन। क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, कॉपर, लीड, टिन, ये जो है ये क्या करेंगे? टैनिन्स को प्रेसिपिटेट। नॉर्मली टैनिन किसको करता है? प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स को एंड आपके अल्कोलाइड्स को। Now color reactions of tannins. So with the ferrichloride, it is very important taste. Ferrichloride test important. So ferrichloride, you will get a bluish black or brownish green color. With the ferrichloride, tannins will give you bluish black or brownish green color. With the potassium ferrocyanide, दूसरा test. Potassium ferrocyanide with ammonia. With the potassium ferrocyanide and ammonia, tannins will give you deep red color. वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, क्या नाम है उसका? गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, इट इज अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैनिन्स। ये सभी है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन होता है क्योंकि इसमें नाम है ना, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। व्हाट इज गोल्ड बिटर स्किन? गोल्ड बिटर स्किन दैट इज अ अनटैंड स्किन फ्रॉम एनिमल। ये मतलब अनटैंड स्किन फ्रॉम एनिमल एंड इज ऑब्टेन फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ ऑक्स। जो ऑक्स होता है, ऑक्स उसका इंटेस्टाइन का स्किन है। अनटैंड स्किन फ्रॉम द एनिमल दैट इज फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन फ्रॉम ऑक्स। यू हैव टू treat with the hydrochloric acid, hydrolyze it, rinse with the distilled water, then you have to place the skin in a tannin solution for 5 minutes. You have to wash with distilled water and add a ferrous sulfate solution.
you will get a brown or black color which is developed on the skin due to tannins. इसको बोलते हैं अपन गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट. नेक्स्ट इज फिनाजोन टेस्ट. सो अगेन इसमें क्या रहेगा, फिनाजोन सोल्यूशन रहेगा. टैनिन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय 2% सोल्यूशन ऑफ फिनाजोन. टैनिन सोल्यूशन टैनिन सोल्यूशन शुड बी प्रिपेयर्ड विद सोडियम एसिड फॉस्फेट. सोडियम एसिड फॉस्फेट के साथ में टैनिन का सोल्यूशन बनाना है. उसमें 2% फिनाजोन सोल्यूशन ऐड करना है. क्या मिलेगा आपको, प्रेसिपिटेट. नेक्स्ट आपका आता है वैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट. अगेन इंपॉर्टेंट टेस्ट है वैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट. सो दो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किसी प्रेसिपिटेशन टेस्ट, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट और वैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एसिड टेस्ट एंड ये लास्ट वाला भी मैच स्टिक टेस्ट. 3-4 टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसको. तो वैनिलीन टेस्ट, वैनिलीन यू हैव टू टेक 1 ग्राम वैनिलीन प्लस अल्कोहल ऐड करना है 10 ml कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है. यू विल गेट अ रेड कलर विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबिस्मल. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. देखो टैनिन्स दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनाइल कंपाउंड. ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, फ्लोरोग्लिसोनॉल. नाउ वैनिलीन एंड HCl that will hydrolyze the acid and then vanillin, acid will hydrolyze the tannins, then this vanillin will react with the tannin to form a chloroglucinol. So vanillin plus alcohol plus HCl, red color is due to formation of chloroglucinol. लास्ट में आता है मैच स्टिक टेस्ट. तो मैच स्टिक टेस्ट में क्या है, माचिस का तीली लेना है आपको. क्या लेना है, माचिस का तीली. ठीक है, सो मैच स्टिक टेस्ट फॉर कैटेचिन. So matchstick is deeper. Matchstick is dipped in the aqueous extract of tannins. क्या करना है आपको, मैचस्टिक टेस्ट जो ना वो टैनिन्स के सोल्यूशन में ये करना है, भिगोना है. वहाँ पे बर्नर जो है गैस बर्नर उसके नियर बाय रखना है. सो मैचस्टिक डिप्ड इन द aqueous extract of plant containing tannins and you have to place near to a burner. एंड बाद में उसको क्या करना है, यू हैव टू मॉइस्टन दैट विद HCl. ये क्या करता है, ये बर्न हो जाता है. सो टैनिन्स विल बर्न विद द रेड कलर फ्लेम. रेड कलर फ्लेम आएगा उसको बर्निंग में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोग्लिसरॉल. समझ में आ रहा है आपको ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है. ये 2-3 टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आता है इसको, मैचस्टिक टेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल. टेस्ट याद रखना है आपको, टेस्ट क्वेश्चन वो आता है 100%. और टैनिन्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स. सो गैलो टैनिन्स, इलाजी टैनिन्स, कॉम्प्लेक्स टैनिन्स एंड कंडेंस्ड टैनिन्स. टैनिन्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, सिंपल टैनिन्स, कंडेंस्ड टैनिन्स. देखेंगे बाद में. एज यू कैन सी दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स. फिनाइल कंपाउंड देखो, फिनाइल पॉलीहाइड्रोक्सी. यहाँ पे फिनाइल रिंग और बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप सब में देखो, सब में क्या रहेगा इसमें, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनाइल. ठीक है, जैसे ये इसको क्या बोलेंगे, कैटेचॉल. इसको बोलेंगे अपन कैटेकॉल. फिनाइलिन प्लस 2 OH नियर बाय 2H, तो ऑर्थो 2H मतलब कैटेकॉल. कैटेचिन वगैरह, कैटेचिन माटी ऐसा रहता है कुछ. सो बेसिकली टैनिन्स आर मेड अप बाय द गैलिक एसिड एंड इलाजिक एसिड. Tannins are made up by the gallic acid. तो याद रखना है बेस मटेरियल क्या है, गैलिक एसिड. गैलिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा है. ये क्या रहेगा, COOH ग्रुप. एंड यहाँ पे फिनाइल को 3 हाइड्रोक्सिल. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ गैलिक एसिड. इलाजिक एसिड, when 2 molecules of gallic acid they are condensed together known as इलाजिक एसिड. ये क्या है, फाइटो पायरोकैटेचॉल. सभी कैटेकॉल भी बोल सकते हैं आप, पायरोकैटेकॉल. ये हो गया कैटेचिन. फ्लेवोन कैटेचॉल, फ्लेवोन न्यूक्लियस. ये हो गया आपका कैटेचिन. दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टैनिन्स. ये टैनिन्स का स्ट्रक्चर ऐसा है. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू स्ट्रक्चर, बट डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू दिस पार्ट. व्हाट इज दिस, क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन्स. क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन्स मैंने जैसे बोला है आपको, क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फार्माकोलॉजी में नहीं, सब में.
फार्माकोग्नोसी में क्लासिफिकेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोलाइट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू, व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटो अल्कोलाइट्स, व्हाट डू यू मीन बाय false alkaloids. We have seen that. Okay, what do you mean by cardiac glycoside, what do you mean by N-glycoside, anthraquinone glycoside? We have seen that. Flavonoid glycoside, we have seen that. After that, there is a aldehyde glycosides. Vanillin क्या है? Vanillin is example of aldehyde glycoside. बहुत बार बोला होगा, क्वेश्चन आ चुके उसका। क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन्स, टैनिन्स का क्लासिफिकेशन याद रखो। टैनिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट। फर्स्ट इज हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। फिर नाम में क्या रखा है? नाम में ये हाइड्रोलाइजेबल मतलब इनका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है ना। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स मतलब क्या? इनका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। अब हाइड्रोलाइसिस हो सकता है तो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट भी बनेगा। वो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है आपका गैलिक एसिड एंड पायरोगेलर, सो गैलिक एसिड एंड इलेजिक एसिड। सो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड और एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। एसिड और एंजाइम के थ्रू उसको हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। एंड गैलिक एसिड एंड इलेजिक एसिड आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में क्या मिलेगा आपको? गैलिक एसिड और इलेजिक एसिड। सो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स कंटेन्स टैनिन्स एंड फ्लोबाटैनिन्स। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स मतलब क्या? दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड और एंजाइम। गैलिक एसिड एंड इलेजिक एसिड आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अपॉन ड्राई डिस्टिलेशन, उनका अगर ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे अपन, गैलिक एसिड एंड अदर कंपोनेंट्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू पायरोगेलर विद द फेरिक क्लोराइड, दे विल गिव यू ब्लू कलर। कौन? हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। इसके एग्जांपल देखो, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स के एग्जांपल क्या है? गैलोटैनिन फ्रॉम नटगॉल, नटगॉल नाम का एक प्लांट होता है, उसमें गैलोटैनिन होता है। रुबाब में, क्लोव में, चेस्टनट। इलायची टैनिन का होता है फ्रॉम ओक, मायरोबाइलम एंड पोमोग्रेनेट बाग। ठीक है, पोमोग्रेनेट बाग मतलब क्या? आपका जो खाते हो ना आप दालिम, मायरोबाइलम, उसमें इलायची टैनिन होता है, इलायची टैनिन, गैलोटैनिन इसमें होता है। सेकंड क्लास होता है आपका कंडेंस्ड टैनिन। ये कंडेंस्ड मतलब क्या? दे आर नॉट इजीली हाइड्रोलाइज्ड, उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। सो कंडेंस्ड टैनिन नोन एज फ्लोबाटैनिन्स, प्रोआंथोसाइनिडीन्स। They are much resistant to the hydrolysis. They are resistant to the hydrolysis. Resistance to the hydrolysis. Now, probotannins, proanthocyanidins. That's why they are called as non-hydrolyzable tannins. Non-hydrolyzable tannins or condensed tannins. They are related to flavonoid pigment because they are derivative of flavon, like catechin 3, catechin or flavon 3 or फ्लेवन 3,4 आवर। तो कंडेंस्ड टैनिन कहाँ से बनता है? दे आर डेरिवेटिव ऑफ फ्लेवोनॉइड पिगमेंट एंड दे विल हैव फ्लेवोन्स लाइक कैटेचिन स्ट्रक्चर एंड फ्लेवन 3 ऑल और फ्लेवन 3,4 आवर। ये ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा उसमें कंडेंस्ड टैनिन। नाउ अपॉन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड, इफ यू ट्राई टू हाइड्रोलाइज देम, अपॉन ट्रीटमेंट ऑफ एसिड एंड एंजाइम्स दे आर पॉलीमराइज्ड or decomposed into red color substance known as propane. इससे होता है hydrolyzable tannin. They can be hydrolyzed by acid or enzyme to give you ellagic acid and gallic acid. Like if you try to hydrolyze the condensed tannin, वो hydrolyze नहीं होती, but अगर आपने try किया तो what will happen? They get polymerized, वो उनका polymer बन जाता है and decomposed into red color substance known as propane, which are insoluble in the water and gives brownish red color with the many plant. तो brownish red color जो होता है plant का is because of the propane. Upon dry distillation में they will give you catechol. Dry distillation करेंगे आपको उसका condensed tannins. Upon dry distillation they will give you catechol nucleus. They will produce a green color with the ferric chloride. उसका एग्जांपल देखो condensed tannin का green tea, सिंकोना, okay, then wild chili bark, black catechu, pale catechu, कोका एंड कोला। इसमें क्या है? कंडेंस्ड टैनिन्स है, हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, वो पॉलीमराइज होंगे। टू प्रोपेन। नाउ स्यूडोटैनिन्स, तीन क्लास होता है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, कंडेंस्ड टैनिन्स एंड स्यूडोटैनिन्स। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स दे आर आल्सो नॉट सिंपल टैनिन्स
Pseudotannins they do not obey Goldbeater skin test. देखो क्वेश्चन इसके ऊपर एज इट इज आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव Goldbeater स्किन टेस्ट पॉजिटिव. ऑप्शन ए में रहेगा हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, ऑप्शन बी में रहेगा कंडेंस्ड टैनिन, ऑप्शन सी में रहेगा pseudotannins. सो Goldbeater स्किन टेस्ट इज नॉट गिवन पॉजिटिव बाय pseudotannins. एग्जाम्पल क्या है उसका? क्लोरोजेनिक एसिड. क्लोरोजेनिक एसिड फ्रॉम कॉफी, नक्सोमिका, कैटेचिन फ्रॉम कोका, कैटेचिन्स फ्रॉम कोका, इपिकोएकोनिक एसिड फ्रॉम इपेक, इपिकोएकोनिक एसिड फ्रॉम इपेक. दे आर द. ठीक है, तो ये Goldbeater स्किन का टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते, तो फिर इनके लिए कौन सा टेस्ट है? सो इफ pseudotannins दे डो नॉट गिव Goldbeater स्किन टेस्ट पॉजिटिव, so they have their own test known as the chlorogenic acid test. So chlorogenic acid test. Drug extract with the water, you have to treat with the ammonia solution, followed by exposure to air. Okay. So there is a slowly formation of green color which indicate the presence of chlorogenic acid. Chlorogenic acid test है किसके लिए है? pseudotannins के लिए. Condensed tannins के लिए क्या है? Condensed tannins क्या होते हैं? हाइड्रोलाइज नहीं होते. ठीक है, एग्जाम्पल से याद रखना है उसके एग्जाम्पल. ठीक है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स क्या है? प्रोडक्ट क्या है हाइड्रोलाइज का? इलेजिक एसिड एंड गैरिक एसिड. ठीक है, ये ऑर्डर नंबर समझ में आ रहा है आपको?